Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. I have to teach you the subject titled Mathematical Statistics. First of all, we have we have to see what that subject means. What is meant by mathematical statistics? It is the application of probability theory, a branch of mathematics, to statistics, as opposed to techniques for collecting statistical data. It is a subject that contains both mathematics in the form of probability theory and statistics, which gives the opportunity to interpret scientific investigations, experiment, and data. In short, we combine statistics with mathematics in this. Statistics is the scientific application of mathematical principles to the collection, analysis, and presentation of numerical data. A statistic is a characteristic of a sample. Generally, a statistic is used to estimate the value of a population parameter. For instance, suppose we selected a random sample of 100 students from a school with 1000 students. The average height of the sample students would be an example of a statistic. जैसे कि हम मरदमशुमारी आपने सुना है, जो मरदमशुमारी एग्जाम्पल है स्टैटिस्टिक की, तो हमें डाटा को इकट्ठा करना है, कलेक्शन ऑफ डाटा स्टैटिस्टिक्स में आता है। आपने कोई क्वेश्चन आयर बिल्ड करना है, उसके डिफरेंट क्वेश्चन अरेंज करने हैं, तो उसके हम डिफरेंट लोगों का फीडबैक लेंगे, तो ये स्टैटिस्टिक्स में आएगा। तो बिफोर discussing course outline, first of all, we discuss some objectives of the course. The main objectives of the course are: describe basic ideas of probability distributions with examples, different types of distributions को देखेंगे examples को use करते हुए, apply ideas of mathematical expectations. What are the expected values to perform various experiments? Is just mean or average value? एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास मीन कहलाती है, एवरेज वैल्यू जिस हमने फाइंड किया, अर्थमेटिक मीन फाइंड किया होगा आप लोगों ने, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। नो स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड स्पेशल प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज, तो हम स्पेशल केसेस को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, and understand ideas of random variables and sampling distributions. We have to understand some testing hypotheses, different types of distributions. The course outlines are as follows: probability distributions and probability densities. यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, देन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, मीन कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, some special cases, special probability distributions and special probability densities. So then functions of random variables, sampling distributions. Here are some recommended books. First of all, Fundamentals of Mathematical Statistics. ये गुप्ता और कपूर की लिखी हुई है, काफ़ी अच्छी बुक है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए। देन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय मिलर एंड मिलर, ये भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में। देन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स फ्रेंड की है बुक। और लास्ट एक ये लोकल ऑथर की बुक मैंने यहाँ पे मेंशन की है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी, ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, बीएससी वाले लोग ये किताब यूज़ कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं, जो कि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमें समझ होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। तो प्रोबेबिलिटी, द वर्ड प्रोबेबिलिटी हैज़ टू बेसिक मीनिंग्स: a quantitative measure of uncertainty, a measure of degree of belief in particular statement or problem. In simple words, we are uncertain about anything. We are not sure about the event occurs or not. चांसेस ऑफ अक्रंस को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसमें हमें श्योर नहीं होता कि एक चीज़ क्या आंसर देगी, वी आर अनसर्टेन, हम कंफर्म कुछ नहीं बोल सकते। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, इफ वी टॉस ए कॉइन वी गेट हेड और टेल, there is 50% chance of occurrence of both the outcomes. In this, we are not sure about the outcome, that either head comes or tail. इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं,
जैसे कि अगर हम डाइस को रोल करें, डाइस मीन्स आप घर में खेलते हैं, लूडो की गेम खेलते हैं, लूडो के दाने को डाइस बोला जाता है। तो हमारे पास 6 पॉसिबल ऑप्शन आते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमें कंफर्म नहीं होता कि हम जब डाइस को रोल करेंगे हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। तो ये एग्जांपल है हमारे पास प्रोबेबिलिटी की। हम प्रोबेबल हैं, हम अनसर्टेन है, हमें नहीं पता। Then experiment. The term experiment means a planned activity or process whose results yields a set of data. हम किसी काम को करने जा रहे हैं तो हमारे पास हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। An experiment which produces different results even though it is repeated a large number of times under essentially similar conditions is called a random experiment. एक काम को बार बार परफॉर्म किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट रिजल्ट्स हमें फिर भी मिल रहे हैं, तो हम इसे रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। The examples की the tossing of a fair coin, the throwing of a balanced die, drawing a card from a deck of playing cards, selecting a sample are some of the examples of a random experiment. आप कॉइन को टॉस करते हैं, आपके डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस आते हैं, या हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, आप एक से ज़्यादा दफ़ा जब टॉस करेंगे तो डिफरेंट आंसर्स आपके पास आते जाएंगे। तो ये हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट की कुछ एग्जांपल्स हैं। A single performance of an event is called trail. कोई इवेंट एक ही दफ़ा परफॉर्म हो रहा है तो उसको हम ट्रेल बोलते हैं। और इवेंट हमारे पास क्या होता है कि कोई आउटकम, सिंगल आउटकम हो या एक से ज़्यादा आउटकम्स हो तो उनको हम इवेंट कहते हैं। The result obtained from an experiment or trail is called an outcome. A set consisting of all possible outcomes that can result from a random experiment is defined to be a sample space for the experiment and is denoted by the letter capital S. तो हम अगर एग्जांपल इसकी देखते हैं कि सैम्पल स्पेस क्या होता है, अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास दो पॉसिबल ऑप्शन आते हैं, हेड और टेल। तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास ये दो ही ऑप्शन है, हेड और टेल। इसी तरह अगर लूडो के दाने को हम अगर रोल करते हैं, डाइस को रोल करते हैं, तो हमारे पास 6 पॉसिबल ऑप्शन हैं। एस इक्वल्स टू उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास उस केस में 6 एंट्रीज आ जाएंगी। An event is an individual outcome or any number of outcomes of a random experiment or a trail. In set theory, any subset of a sample space is called an event. कि हम अगर किसी हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है उसके सबसेट फाइंड कर लें तो हमारे पास वो सारे के सारे क्या होते हैं, इवेंट आते हैं। और अगर हमारे पास सिर्फ एक ही आउटकम होगी तो हम सिंपल इवेंट कहते हैं, और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा आउटकम है तो हम उनको कंपाउंड इवेंट कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसकी देखें, लेट अस कंसिडर a sample space as containing 3 sample points that is s equals to a b c। तो हमें सेट के सबसेट फाइंड करना आते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास n इक्वल्स टू 3 एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट्स के लिए फार्मूला क्या होगा, 2 रेज टू पावर n मीन्स 2 की पावर 3। हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल आंसर क्या आएगा, 8 पॉसिबल आंसर आएगा। तो ईच ऑफ दी सबसेट्स इज एन इवेंट। तो जितने भी सबसेट्स हैं उनको हम इवेंट कहते हैं। द सबसेट ए बी सी इज द सैंपल स्पेस इटसेल्फ एंड इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट। अगर तो पूरे का पूरा सेट हमें दोबारा मिल रहा हो सबसेट ही होता है, इसको हम श्योर इवेंट कहते हैं। तो ये ज़ाहिर लाजमी एग्जिस्ट करता ही करता है एक सबसेट, और या इसको सर्टेन इवेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा ऑकर करता है। और एम्प्टी सेट पाई इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट बिकॉज इट कैन नेवर ऑकर। और प्रोबेबिलिटी में इसकी जस्ट डेफिनेशन है, कभी भी हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट एग्जिस्ट नहीं करता। Further, two events A and B of a single experiment are said to be mutually exclusive or disjoint if and only if they cannot both occur at the same time. It means intersection of sets is empty, that is, they have no points in common. For example, अगर हम कॉइन को टॉस करें तो हमारे दो पॉसिबल ऑप्शन होते हैं, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दोनों एट ए टाइम नहीं आ सकते। तो ये हमारे पास क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए, हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं है। Events are said to be exhaustive when the union of mutually exclusive events is the entire sample space. तो हमारे पास इसी तरह इसी पुराने एग्जांपल में अगर हम कॉइन को टॉस की बात करें तो हेड और टेल दो पॉसिबल ऑप्शन हैं। तो ये हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं कि इन दोनों को ज्वाइन करें तो हमारे पास पूरी की पूरी सैम्पल स्पेस बनती है। Similarly, third हमारे पास है कि two events A and B are said to be equally likely when one event is as likely to occur as other. हमारे पास एक इवेंट जो अकर हो रहा है उसके जितने चांसेस हैं दूसरे इवेंट की भी उतने ही नंबर ऑफ चांसेस हैं, तो हम कहेंगे हमारे पास ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। जैसे किसी एग्जांपल में कॉइन टॉसिंग में हमारे पास 50% चांस है हेड आने के और 50% चांस है हमारे पास टेल आने के।
तो हम एग्जॉस्टिव इवेंट को हम कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट भी कहते हैं। फर्दर, ए रैंडम वेरिएबल इज a real valued function defined on a sample space. In random variable, we assign numerical values to the sample space, or it is such a numerical quantity whose value is determined by the outcome of random experiment. It is denoted by capital letters, that is x, y, z. इसमें हमें करना क्या है कि हमारे पास जो भी एक्सपेरिमेंट है हमने उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल, if we throw a pair of dice and we are interested in the sum of dots appeared on the faces of two dice, so we assign to each possible outcome of experiment one of numbers, that is 2, 3, 4 up to 12, corresponding to the sum of dots appearing on their faces. हमें हमारे पास एक डाइस में भी 1 से लेकर 6 तक एंट्रीज हैं, दूसरी डाइस में भी 1 से लेकर 6 तक एंट्रीज हैं। तो सम ऑफ डॉट्स हमारे पास क्या क्या आ सकता है, 1 जमा 1 2 और सो ऑन। हमारे पास टोटल सम 6 + 6 12 सम आ सकता है। तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर दी। तो हमें यहाँ पे रैंडम वेरिएबल में क्या करना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करनी होती है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर कॉइन को टॉस करते हैं, 2 दफ़ा कॉइन को टॉस करते हैं, तो हमारे पास टोटल पॉसिबल ऑप्शन कितने हैं, 4, 2 की पावर 2, 4 ऑप्शन है। और हमें अगर कहा जाए कि आपने बताना है कि आपके पास हेड कितनी दफ़ा अपीयर हो, जब 2 दफ़ा टॉस करेंगे तो हेड दोनों दफ़ा भी आ सकता है, एक दफ़ा भी आ सकता है, या बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो हमारे पास हम कहेंगे जब हेड अपीयर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे 0 हेड, जब हेड अपीयर हुआ तो हम बोलेंगे 1 दफ़ा हेड, और जब अगर 2 हेड अपीयर हुए तो हम बोलेंगे n = 2। तो हम इस तरह वैल्यूज असाइन कर सकते हैं रैंडम वेरिएबल में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, द डिस्क्रीट एंड द कंटीन्यूअस वन। Discrete random variable. A random variable x is defined to be discrete if it can assume values which are finite or countably infinite. In finite case, the values are listed as x1, x2 up to xn, but in countably infinite case, the values are listed as x1, x2 up to so on. Examples की हम इस तरह से देखते हैं। The number of heads appeared in coin tossing experiment, the sum of dots in throwing a pair of dice, the number of defective items observed in a consignment, the number of road accidents, the number of peoples in the ground are examples of discrete random variable. डिस्क्रीट में हम क्या इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास डेफिनेट नंबर होंगे। अगर मैं इसके ग्राफ थ्योरी में बात करूँ कि ग्राफ में देखा जाए तो डिस्क्रीट का ग्राफ कैसा होगा, सेम लाइक स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन किस तरह है कि हमारे पास 0.1 से लेके 1 तक हम 1 वैल्यू असाइन करते हैं, फर्दर 1.1 से लेके 2 तक हम 2 वैल्यू असाइन करते हैं। तो हमें कॉन्टिन्यूस वैल्यूज के लिए भी क्या डेफिनेट आंसर मिल रहा होता है। तो इस वजह से हम इसे बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। A random variable x is defined to be continuous if it can assume every possible value in an interval a b, a less than b, where a and b may be -infinity and +infinity respectively. The height or weight of a person, the temperature at the place, the amount of rainfall are examples of continuous random variable. कॉन्टिन्यूस का ग्राफ अगर हम ड्रा करना चाहें, ग्राफ की फॉर्म में देखना चाहें, तो जिस तरह हमको कर्व बनाते हैं, लाइन ड्रा करते हैं, तो पेंसिल को हम उठाते नहीं हैं, लगातार चलाते जाते हैं, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस ग्राफ मिल जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम प्रॉपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।